Welcome to all of you. Aunt Jennifer's Tiger, taken from class 12th textbook, that is Flamingo. In this poem, poet Adrian Rich has tries to create a beautiful image of all those women who are dominated by the male dominated society. Really, it is very heart touching, very painful story of all the women. Here, a woman is presented as a victim of male dominated society. In the male dominated society, women are not given their due respect. It is only in the books that male and female are equal. There should be equality, but it is not in the practical life. The poet Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, in USA. She has been involved lifelong in the women movement, in the for the awareness of women, for the right of women. He she has been fighting for long. Really, the poem is heart touching. This shows the male domination, and really it will change the mindset of men who think that women are a subject to live under four wall. They should live under the house. It is not like that. Women should be given the equal importance. They have their life. They should be given freedom. So the poem talks about the freedom they need. A woman should be given. They have heart. They also feel the pain. They have a sensitive heart. When they are not given the freedom, they are treated like a subject in the house, like anything in the house. It is really very painful. So let's see. The poem was published in 19 volumes of poetry. uh, I mean, the Adrian Rich has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life. A woman experiences. Women जो होती हैं मैरिड लाइफ के बाद आफ्टर मैरिज दे कैन नॉट इंजॉय देयर लाइफ फ्रीडम. ऐसा लगता है जैसे शादी के बाद जो विमेन होती हैं वो अपना लाइफ जीना छोड़ देती हैं. स्पेशली इन आवर इंडियन सोसाइटी जो लेडीज होती हैं उनको वो अधिकार नहीं दिया जाता है, फ्रीडम नहीं दिया जाता है. तो इस पोएम में हम लोग देखेंगे किस तरह से आज के पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाएं हैं उनका शोषण हो रहा है. उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. Aunt Jennifer's tiger prints across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They face in sleek
chivalry, certainty। फर्स्ट स्टांजा में पोएट बहुत ही सुंदर इमेज प्रस्तुत की है, एक इमेज बनाने का प्रयास किया है। आंट जेनिफर एक सिंबल है और आंट जेनिफर जो है वो अपने पैनल में एक टाइगर का चित्र बना रही है। ये कोई चित्र सिर्फ नहीं है, आंट जेनिफर जो इमेज बना रही है, जो बुन रही है टाइगर का चित्र पैनल में, वो उसके मन का एक छाए हैं। सी हैज़ द डिजायर्स टू लिव लाइक दैट टाइगर, यानी उस टाइगर की तरह वो जीना चाहती है। ये इच्छाएं हैं जो वो पैनल में टाइगर के जरिए वो प्रस्तुत करती है। जिस तरह से एक टाइगर ब्राइट ऑफ वाज टेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक शान से लाइफ जीती है, एक ग्रैंड लाइफ जीता है एक टाइगर, जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह से लेडीज भी चाहती हैं। यहाँ आंट जेनिफर सिम्बोलाइज करती है सारे लेडीज को, तो आंट जेनिफर भी चाहती है उसी तरह से उस टाइगर की तरह जीना। तो यहाँ पे बिल्कुल एक कंट्रास्ट है। टाइगर जिस तरह से स्वतंत्र है, उसका जो लाइफ है ग्रैंड है, वो बहुत ही एक्टिव है, एनर्जेटिक है, हैप्पी है, प्राउड है। लेकिन जस्ट ऑपोजिट होता है लाइफ ऑफ अ वीमेन। वीमेन को वो कोई भी अधिकार नहीं मिलता, वो अपने इच्छाओं से लाइफ को जी नहीं सकती। ये एक तरह से हमारे समाज का बहुत ही बड़ा विडंबना है, ये एक तरह से दिखावा है। कहने का तो हम उन्हें वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें वो अधिकार नहीं दे रहे हैं। In the second stanza, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। तो आंट जेनिफर्स जब वो वुलन पिक्चर बना रही है, वुल अपने हाथ से जो सिलाई कर रही है, एक तरह से एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टाइगर का चित्र बना रही है, वो बहुत हार्ड उसे लगता है। सी कैन नॉट डू इट ईजीली कंफर्टेबली, क्योंकि ये उसके मन का फीलिंग्स है जो उस चित्र के ज़रिए बाहर आ रहा है, और ये बहुत ही पेनफुल है। वो अपने लाइफ के दर्द को एक्सप्रेस कर रही है इस चित्र के ज़रिए। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो यहाँ पे मैसिव वेट जो है वो शादी का जो एक बोझ है वो दिखाया गया है। यानी एक लेडी जो होती है शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर एक बड़ा सा बोझ रख दिया गया हो। वो घर में हमेशा काम करती हैं, उन्हें सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, फ्रीडम, आज़ादी, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का आज़ादी नहीं है। बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, बाधाएं होती हैं, जिसमें एक लेडी जी रही हैं, ख़ास तौर से गाँव में। आज हमारा जो देश है, हमारा वर्ल्ड है, इतना डेवलप किया है, इसके बावजूद अभी भी गाँव में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे घर की लेडीज को एक बंधन में ही रहना पड़ता है, फाउंडेशन में जीना पड़ता है। तो यहाँ पे पोएट एक लेडी का दर्द को एक्सप्रेस कर रही है इस पोएम के जरिए। In the last stanza, when aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ordeals she was mastered by। तो यहाँ पे पोएट कहती हैं कि जब आंट का डेथ हो जाएगा, आंट जेनिफर जब मर जाएंगी, उस समय भी उनके हाथ जो होगा वो
पता चलेगा कि वो दर्द कितना दर्द में वो जी थी लाइफ को. She would feel the fear even in the time of death. Still ringed with ordeals she was mastered by. वो फील करेगी मरते समय. यानी पोएट यहाँ कह रहा है कि पोएट जो एक लेडी होती है अंतिम समय तक जो लाइफ का जो बोझ है, एक बर्डन है, उसे लेकर जीती है. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो टाइगर जो पैनल में बना है वो तो फ्री, स्वतंत्र होगा, जंप करेगा. इट कैन लिव द हैप्पी लाइफ, फ्री लाइफ. बट जो आंट जेनिफर है वो जो लाइफ है उनका वो बंधन में ही गुजर जाएगा. पूरा जो जीवन होता है वो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन में, बाउंडेशन में ही गुजर जाता है. सो ओवरऑल द पोएम इज अ वेरी पेनफुल एंड सेंसिटिव अकाउंट of all those ladies who are dominated in this male dominated society. We have domination over them. So this is a eye opener, mind changing. This can change the mindset of the men who think that women are just a matter, a subject to be dominated. No, they have heart, they feel the pain, so they should not be thought like that. They should be given their due respect in the society.